آپ نے کبھی غور کیا کہ بعض گھروں میں پیسہ آتا تو ہے مگر ٹھہرتا نہیں، اور کچھ لوگ بغیر شور مچائے آہستہ آہستہ مضبوط ہو جاتے ہیں؟ آج میں آپ کو وہ چھوٹی سی بات بتانے جا رہی ہوں جو اکثر لوگ ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، مگر جو ایک بار سمجھ جائے وہ کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ بلی کے بال نرمی سے لیے گئے، صحیح جگہ پر رکھے گئے، اور ایک ایسا عمل جو آپ کی سوچ، عادت اور قسمت تینوں کا رخ بدل سکتا ہے۔ آج میں آپ کو شروع سے آخر تک وہ پوری بات بتانے جا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ کھول کر سمجھاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں بھی وہ سکون اور وہ برکت آئے جس کی تلاش میں ہم سب مارے مارے پھرتے ہیں۔ اگر آپ نے اگلے چند منٹ اپنی پوری توجہ مجھے دے دی اور دل کے کانوں سے میری بات سن لی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں پرانا وہ آزمودہ عمل ہے جو انسان کے رزق اور سکون کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ بات دراصل بلی کے بالوں کی ہے۔ جی ہاں، سن کر شاید آپ کو عجیب لگا ہو کہ بھلا بلی کے بالوں میں کیا خاص بات ہو سکتی ہے، لیکن میرے عزیز، اصل راز ان بالوں میں نہیں ہے، بلکہ اس طریقے میں ہے، اس نیت میں ہے، اور اس خاص رویے میں ہے جس کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے، کیونکہ روحانیت میں چیزوں سے زیادہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی انرجی اور جذبہ کام کرتا ہے۔ آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو نظر نہ آنے والی مخلوقات کو بھی دیکھ لیتی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی حس رکھی ہے جو انسان کے گھر کے حالات کو بھانپ لیتی ہے۔ اسی لیے اس عمل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے وہ یہ ہے کہ بلی ایک انتہائی حساس اور نرم دل جانور ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت میں ایک عجیب سی خودداری اور معصومیت رکھی ہے۔ یہ محبت کی زبان سمجھتی ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ ذرا سی بھی سختی کریں گے یا زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو نہ صرف وہ ڈر جائے گی بلکہ اس پورے عمل کا اثر ہی ختم ہو جائے گا اور الٹا نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ اکثر لوگ یہیں پر غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ جلد بازی میں ہوتے ہیں یا ان کی نیت صرف اپنا مطلب نکالنے کی ہوتی ہے، تو وہ بلی کو پکڑ کر زبردستی اس کے بال نوچنے کی یا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ظلم ہے، اور ظلم سے کبھی خیر برآمد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بلی کے بال کبھی بھی زبردستی نہیں لینے، بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کا ایک خاص وقت اور طریقہ ہوتا ہے۔ جب بلی بالکل پرسکون ہو، آرام سے بیٹھی ہو یا لیٹی ہو، اور وہ آپ کے پاس آ کر خود اپنی مرضی سے بیٹھے، تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں، اسے پیار کریں، اس کے سر پر اور کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیریں، جیسے ہم کسی چھوٹے بچے کو پیار کرتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے لمس سے خوش ہو رہی ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تو پھر بہت پیار سے، انتہائی نرمی کے ساتھ اس کے جسم سے وہ بال آہستہ آہستہ اتار لیں جو پہلے ہی گرنے والے ہوں یا بالکل الگ ہو رہے ہوں، تاکہ اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو، اسے محسوس بھی نہ ہو کہ آپ نے کچھ لیا ہے۔ یقین مانیں، یہی نرمی اس پورے عمل کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں نرمی نہیں اور دل میں رحم نہیں تو پھر آپ جتنے مرضی بال جمع کر لیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سارا کھیل ہی احساس کا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب آپ اتنی محبت اور احتیاط سے یہ عمل کریں گے تو آپ کے اپنے اندر کی بے چینی بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب ہم کسی بیزبان مخلوقن کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں تو آسمان والا ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ وہ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی روح کو نہیں سمجھتے۔ خیر، جب آپ بلی کے بال اس پیار اور محبت بھرے طریقے سے حاصل کر لیں تو اب اگلا قدم آتا ہے جو پہلے قدم سے بھی زیادہ نازک اور اہم ہے،
क्योंकि अब ये बाल एक आम कूड़ा करकट नहीं रहे, बल्कि ये आपकी नियत और एक खास मकसद की अमानत बन चुके हैं। इन बालों को हासिल करने के फौरन बाद किसी साफ सुथरी जगह पर रखें। इन्हें जमीन पर या किसी गंदी जगह पर हरगिज नहीं फेंकना। एक बात का खास ख्याल रखना है कि बाल गीले ना हो, इनमें मिट्टी या गंदगी ना लगी हो और न ही इनसे कोई बदबू आ रही हो, क्योंकि सफाई और पाकीज़गी ही वो चीज है जो बरकत को अपनी तरफ खींचती है। अगर आपको लगे कि बालों में जरा सी भी नमी है या वो साफ नहीं लग रहे, तो इन्हें हल्की सी धूप में रख दें। बहुत तेज धूप में नहीं, बस इतनी कि वो कुदरती तौर पर खुश्क हो जाए और सूरज की रोशनी से वो जरासीम या मनफी असरात से पाक हो जाए। यहां मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता चलूं। सफाई सिर्फ जाहिरी नहीं होती, बल्कि नीयत की सफाई भी इसमें शामिल होती है। जब आप इन बालों को साफ कर रहे हों, तो अपने दिल में यह ख्याल रखें कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी जिंदगी से भी इसी तरह परेशानियों और गंदगियों को साफ करना चाहता हूं। यह अमल एक तरह की खामोश दुआ बन जाता है। मैंने कई बार महसूस किया है कि जब हम चीजों को तरतीब और सलीके से रखते हैं, तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद तरतीब में आने लगती है। ये कुदरत का कानून है। अब जब बाल खुश्क और साफ हो जाएं, तो इनको संभालने का मरहला आता है, और यह मरहला आपकी संजीदगी का इम्तिहान है। अब आपने इन बालों को किसी साफ सुथरे कपड़े में या किसी बिल्कुल सादा और कोरे कागज में अच्छी तरह लपेट लेना है। याद रहे कि कपड़ा या कागज पुराना, मैला या लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि सफेद रंग का कपड़ा या कागज हो, या फिर कोई भी हल्का रंग जो आंखों को भला लगे। अगर आप टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी साफ और नया होना चाहिए। मकसद ये है कि आप जिस चीज को अपनी बेहतरी के लिए वसीला बना रहे हैं, उसको इज्जत दें, क्योंकि जब तक आप किसी चीज की कद्र नहीं करते, वो चीज आपको नफा नहीं देती। बालों को इस तरह लपेटें कि वो बाहर न निकले, न ही हवा से उड़े और न ही इधर उधर बिखरे रहे। ये एक छोटी सी पोटली या पड़िया बन जाएगी। ये जो तरतीब आप बना रहे हैं, ये सिर्फ बालों को लपेटना नहीं है, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि आप अपने माल और अपनी चीजों की कद्र करना जानते हैं। आप लापरवाह इंसान नहीं हैं, बल्कि आप हर चीज को इसके सही मकाम पर रखने का सलीका जानते हैं। यहां मैं रुककर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से अक्सर लोग अपनी चीजें, अपने पैसे, अपने कागजात कितनी बेतरतीबी से रखते हैं, और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास बरकत नहीं टिकती। मेरे दोस्त, बरकत वहीं ठहरती है जहां सलीका होता है, जहां सफाई होती है। ये जो आप बिल्ली के बालों को इतने एहतिमाम से संभाल रहे हैं, ये दरअसल आप अपने लाशूर को, अपने दिमागन को ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं तैयार हूं, मैं अपनी जिंदगी को संवारने के लिए छोटी छोटी जुजियात पर भी गौर करने को तैयार हूं। जब आप इस नियत के साथ, इस पाकीज़ा जज्बे के साथ इन बालों को लपेटकर अपने पास रख लेते हैं, तो आपका पहला और सबसे बुनियादी मरहला मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल सफर तो अब शुरू हुआ है। ये तो सिर्फ तैयारी थी। असल राज तो यह है कि अब इन बालों का करना क्या है, इन्हें कहां रखना है, और इसके साथ वो कौन सा ऐसा अमल जोड़ना है जिसके बगैर ये सब कुछ अधूरा है। ये वो बातें हैं जो आपकी आंखें खोल देंगी। लेकिन याद रखें, जल्दबाजी शैतान का काम है। आपने इस अमल को एक बोझ समझकर नहीं करना, बल्कि एक मोहब्बत और उम्मीद के सफर की तरह करना है। यहां तक तो आपने बालों को हासिल करने और इन्हें महफूज करने का तरीका सीख लिया, लेकिन मैं जानता हूं आपके दिल में अब यह सवाल मचल रहा होगा कि अच्छा, बाल तो संभाल लिए, अब इनसे दौलत या बरकत कैसे आएगी। यही वो मोड़ है जहां अक्सर लोग भटक जाते हैं। वो समझते हैं शायद ये कोई जादू की छड़ी है। नहीं मेरे भाई, ये जादू नहीं, ये नफ्सियात और रूहानियत का एक खूबसूरत मिलाप है।
जब आपने एक मासूम जानवर के साथ नरमी की, इसकी राहत का ख्याल रखा और फिर इसकी निशानी को इतने अदब से संभाल लिया, तो आपने कायनात को एक मुसब्बत सिग्नल भेजा है। अब जो अगला कदम मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो इस सारी मेहनत का निचोड़ है। अगर आपने वो न किया तो ये सारी मेहनत रायगां जा सकती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने बीज तो बहुत अच्छा बोया हो, लेकिन अगर आप इसे सही जमीन और पानी नहीं देंगे तो वो पौधा कैसे बनेगा। इसलिए अब आपने बहुत ध्यान से मेरी अगली बात का इंतजार करना है, क्योंकि वहां मैं आपको बताऊंगा कि इन बालों को किस खास जगह पर रखना है और इसके साथ रोजाना या हफ्तेवार कौन सा छोटा सा काम करना है जो आपके रिज्क के दरवाजे पर दस्तक देगा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ अपनी नीयत और रवैया बदला और अल्लाह ने इन्हें वहां से दिया जहां से इनका गुमान भी नहीं था। ये जो बिल्ली के बालों वाली बात है, ये सिर्फ एक टोटका नहीं है, ये दरअसल रहम दिल्ली की मशक़ है। जब आप इस अमल के दौरान अपने गुस्से पर काबू पाते हैं, बिल्ली के नखरे बर्दाश्त करते हैं, तो आपका अपना मिजाज भी धीमा हो जाता है और यकीन माने रिज्क गर्म मिजाज और लड़ाका इंसान से दूर भागता है और नर्म मिजाज इंसान के पीछे आता है, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया था, क्योंकि वो पोटली या वो पड़िया जो आपने इतनी मोहब्बत और मेहनत से तैयार की है, वो महज एक चीज नहीं रही, बल्कि अब वो आपकी एक उम्मीद बन चुकी है और इस उम्मीद को इसके सही मकाम पर पहुंचाना ही असल समझदारी है। इसके बाद सबसे अहम मरहला आता है और वो है जगह का इंतखाब। जी हां, जगह का इंतखाब इतना ही जरूरी है जितना बीज के लिए जरा खेज मिट्टी का होना जरूरी होता है। आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन बालों को रखना कहां है, तो गौर से सुनिए। बिल्ली के बाल इस जगह रखे जाएं जहां आपके पैसे रहते हैं। ये वो जगह होनी चाहिए जो आपकी दौलत का, आपके रिज्क का मस्कन हो। ये आपका बटुआ हो सकता है जो हर वक्त आपकी जेब में या सीने के साथ लगा रहता है। ये घर में मौजूद वो दराज हो सकती है जहां आप अपनी महीना भर की कमाई लाकर रखते हैं। ये आपकी अलमारी का वो खुफिया खाना हो सकता है जहां आपने अपनी जमा पूंजी संभाल कर रखी होती है, या फिर ये वो कोई भी मखसूस जगह हो सकती है जहां आप नकद रकम या अपने कारोबार और जायदाद के अहम कागजात रखते हैं। इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप दुनिया को दिखाते फिरें कि देखो मैंने क्या रखा है, बल्कि इसका मकसद खामोशी से एक अलामती अमल करना है, एक ऐसा अमल जो सिर्फ आपके और आपके रब के दरमियान राज रहे। जब आप इस जगह पर इन बालों को रखते हैं तो दरअसल आप अपने लाशूर को एक बहुत मजबूत पैगाम दे रहे होते हैं। आप इस जगह बालों को रखकर यह एहसास अपने दिल में ताजा करते हैं कि आप अपने माल की हिफाजत, तरतीब और कद्र कर रहे हैं। यहां एक बात बहुत जरूरी है जिसे समझना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप इस नुक्ते को अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। यह कोई जादू मंत्र नहीं है कि आपने बाल रखे और अगली सुबह आसमान से नोटों की बारिश शुरू हो जाएगी या रातों रात आप लखपति बन जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, कुदरत का निजाम ऐसे नहीं चलता। लेकिन यह जरूर है कि इस अमल से इंसान का रवैया बदलना शुरू हो जाता है, और जब रवैया बदलता है तो हालात बदलने में देर नहीं लगती। होता दरअसल यह है कि जब आप अपने पैसों की जगह को साफ रखते हैं, इसे संभाल कर रखते हैं, इससे गंदगी और बेतरतीबी को दूर करते हैं, और फिर इसके साथ एक ऐसी चीज जोड़ देते हैं जिसके साथ आपकी नरमी, आपकी तवज्जो और एक मासूम जानवर की मोहब्बत जुड़ी हो, तो आप लाशूरी तौर पर फजुल खर्ची छोड़ने लगते हैं। आपको शायद महसूस भी ना हो, लेकिन जब भी आप इस दराज या बटुए की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो वो नरमी और वो एहतियात आपको याद आएगी जो आपने इन बालों को हासिल करते वक्त बरती थी। और यही वो लम्हा होता है जहां बेकदरी कम हो जाती है, इंसान सोच समझकर खर्च करता है, और यही चीज आहिस्ता आहिस्ता फर्क पैदा करती है। दौलत का एक उसूल है कि यह वहां टिकती है जहां इसकी इज्जत की जाती है
और इज्जत का मतलब सिर्फ इसे जोड़कर रखना नहीं, बल्कि इसे सलीके से रखना है। मैंने अपनी जिंदगी में बारहा देखा है कि जो लोग अपने बटुए में पुरानी रसीदें, कूड़ा करकट और पैसे मरोड़ कर रखते हैं, वो हमेशा तंगी का शिकवा करते नजर आते हैं। लेकिन जब आप इस अमल के जरिए सफाई और तरतीब के आदी हो जाते हैं, तो बरकत खुद रास्ता बनाकर आप तक पहुंचती है। अब मैं आपको एक और इंतहाई अहम बात बताने जा रहा हूं, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं या इसे गैर जरूरी समझते हैं। हालांकि इस पूरे अमल की जान इसी बात में पोशीदा है। सिर्फ बाल रख लेना काफी नहीं है। यह तो सिर्फ पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा यह है कि आपने देना क्या है। कुदरत का कानून है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब भी बिल्ली आपके घर आए, खास तौर पर अगर वो बार बार आती हो और आपके दरवाजे पर दस्तक देती हो या आपके आंगन में बैठती हो, तो इसे धुतकारें नहीं, इसे भगाएं नहीं, बल्कि इसे अल्लाह का मेहमान समझें और इसे गोश्त जरूर खिलाएं। जी हां, गोश्त, चाहे वो छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो। थोड़ा सा गोश्त भी काफी है, लेकिन कोशिश करें कि वो ताजा हो और साफ हो। इस अमल में दिखावा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा न हो कि आप बिल्ली को खाना खिला रहे हों और ध्यान लोगों की तरफ हो कि कोई देख रहा है या नहीं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। बस खामोश से, प्यार से इसे खिला दें और जब वो खा रही हो तो दूर हट जाएं, ताकि वो इत्मीनान से पेट भर सके। इसे ये डर न हो कि आप इससे छीन लेंगे। ये अमल बज़ाहिर तो एक जानवर को खाना खिलाना है, लेकिन रूहानी दुनिया में ये रहम, शुक्र और खैर का बहुत बड़ा इशारा समझा जाता है। आपने सुना होगा कि रहम करने वालों पर रहम किया जाता है। जब आप इस मखलूकन का पेट भरते हैं जो बोलकर मांग नहीं सकती, तो वो जात आपका दामन भर देती है जो बिन मांगे अता करती है।